So today we are going to start with a new chapter, and the new chapter is value of supply. This chapter is very simple as it is having only one section. इसमें सिर्फ एक ही section है value of supply में, section 15. We have a rules of valuation also. Rules of valuation also, that also we are going to consider, that also we are going to cover. ठीक है. So आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 पे. किस पे रहेगा? सेक्शन 15 पे रहेगा. Now what is section 15? Section 15 is value of supply. You will say, sir, what do you mean by value of supply? Value of supply, why we calculate value of supply or why we read this section? So value of supply helps me to know what will be my amount of tax. So value of supply help me to determine or find amount of tax. So value of supply is an amount on which we calculate GST. We calculate GST. So now question is how to calculate value of supply. How to calculate value of supply? Section 15 में provision दिया हुआ. Section 15 में provision दिया हुआ. So there are three provisions. Under section 15, there are three provisions. How many provisions? Three provisions. One is section 15, value of supply. आप इसको वैल्यूएशन भी बोल सकते हो. सर यहाँ पे 3 सेक्शंस हमें करना है, कवर करना है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि that I will be covering the whole section in table format so that it will be easy for you to understand. First is section 15.1, section 15.2, section 15.2, and third one is section 15 subsection 3. Section 15.1, section 15.2, section 15.3. These are the 3 sections we are going to learn under section 15. 15.2 में भी हमारे पास still 5 new sections है. And what are the 5 new sections? It is 15.2A, 15.2B, 15.2C, 15.2D, and 15.2E. ऐसे 5 provisions है. It means under section 15, under section 15.1, 15.2A, 15.2B, 15.2C, 15.2D, 15.2E, and last one is 15.3. ऐसे 3 provisions we have to cover under section 15. ठीक है sir. Let us start with section 15. So now we are starting with the section 15. What is section 15? Value of supply, or you can say valuation. So why we learn section 15? Because under this we came to know on which amount we are liable to pay tax. We can find the amount on which the supplier or recipient are liable to calculate the tax. ठीक है. So section 15.1 क्या बोलता है? So section 51 बोलता है value of supply. Listen what I'm saying. Value of supply is equal to transaction value. Value of supply is a transaction value. So इसका मतलब on which amount you are going to calculate GST. So we are going to calculate the amount of GST on transaction value. We are going to calculate the amount of GST on transaction value. Why? Because transaction value का मतलब ही value of supply. If value of supply is equal to transaction value, right? When we say it is a transaction value, we say transaction value only when it satisfies 3 conditions. Which are the 3 conditions? 3 condition is
price actually paid, price actually paid, price actually paid or payable for supply. सर ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यूज होती है जो हम एक्चुअली पे करते हैं या पेएबल होता है फ्यूचर में, इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बी, बी, नॉट सप्लाई नॉट टू रिलेटेड पर्सन. सप्लाई शुड नॉट बी टू रिलेटेड पार्टी. सर आपका सप्लाई रिलेटेड पार्टी को नहीं होना चाहिए. नंबर सी, प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन. Price is a sole consideration. So related party means what? We have already discussed related to related party. If you remember, one person control two person, two person control one person is a director of some other person's company, some other person is a director of some other's company. You remember? मैंने आपको 7 possibilities बताई थी related to related person. सर हमने वो 7 possibilities की थी sections not schedule 2 में. Schedule 2, scope of supply, if you remember, scope of supply. So section 15(1) says value of supply is equal to transaction value. It means value of supply is a transaction value. And transaction value is that value where the price is actually paid or payable for supply and not related party. It should not be to related party, and price should be your sole consideration. So what do you mean by price should be the sole consideration? If some person who is my relative or related party, if some person to whom the goods are supplied, let us assume the cost of supply, take an example, it is 10,000. And if I offered, I mean, if he is my related party, and if I offered him 9,000 rupees, but to rest party I'm offering only 10,000. Sir, आपने इसको 9,000 में क्यों दिया? Reason is very simple, he is a related party. And here my price is not a sole consideration because my actual price is 10,000. If my actual price is 10,000 and I'm charging 10,000, it means price is a sole consideration. It means price is a sole consideration. Please keep this point in mind. Price is a sole consideration. ठीक है sir. But if the price is 10,000 and you are charging 9,000, it means that the price is not a sole consideration. So अगर ये condition fulfill नहीं होती है तीनों, so here you cannot calculate value of supply using section 50. Agar value of supply is not equal to transaction value, so in that case you are going to calculate value of supply by rules of valuation. Rules of valuation. If you won't be able to calculate value by applying sections, then you have to calculate through rules. Through rules you are going to calculate the value of supply. So समझ में आ गया. So what is section 15(1) says? 15(1) says that value of supply is a transaction value. Point number 1. Transaction value is a value, is a price actually paid or payable, not to related party, and price is a sole consideration. देखो यहाँ पे provision में यही दिया हुआ है. What is given in section 15(1)? 15(1) says, sir, value of supply of goods or services shall be transaction value. It means, sir, value of supply is equal to transaction value. Okay, sir, ये समझो. Here, price actually paid or payable for the said supply of goods or services. So what is transaction value? Transaction value is a price which is actually paid or payable. Paid or payable. And third one is supplier and recipient are not related party. Supplier and recipient are not related party. तो यहाँ पे लिखते हैं supplier and recipient, supplier and recipient not and related party. Is it okay? Not and related party. And third point is price is a sole consideration. Price should be what?
प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। तो सर मुझे सेक्शन 15(1) से मैं एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि सेक्शन 51 से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, योर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो प्राइस है जो एक्चुअली अभी आप पे करोगे या फ्यूचर में पे करोगे उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए जो एक्चुअली टेकन प्लेस है, विथ होम, सप्लायर एंड रेसिपिएंट के बीच में। बट यू हैव टू मेक श्योर दीज टू पर्सन आर not related person and the price should be the sole consideration. Even if समझो they are the related person, but make sure that price should be the sole consideration. अगर मान लो रिलेटेड पर्सन होते भी है, but price should be the sole consideration. If the value of supply is 10,000, make sure that actually price paid or payable by the recipient should be 10,000. So what is section 15(1) says? So section 15(1) says that value of supply is equal to transaction value. Transaction value is a price paid or payable, paid or payable. Paid or payable by whom? By recipient to supplier for supply of goods or services. Point number 2. Supplier and recipient are not related party. ये दोनों related person नहीं होने चाहिए या related party नहीं होनी चाहिए. Number C, price should be the sole consideration. Price is a sole consideration. मैंने सप्लाई किया only for price. That's it. Only for price. सर बट सबको टेक एन एग्जांपल सर 10,000 है, आपका अगर डिस्काउंट ऑफ ऑफर करते होंगे, लेट अस अज्यूम यू हैव गिवन डिस्काउंट, तो क्या ये प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन है? मैं आई हैव टू मेक श्योर क्या ये डिस्काउंट बाकी लोगों को भी दे रहा हूं? इफ इट इज यस, देन प्राइस इज अ सोल्ड कंसिडरेशन. So discount to only specific recipient is not here. The price is not a sole consideration. Is it right? ये ध्यान देना. ठीक है सर. 15(1) समझ में आ गया. Section 15(2) says value of supply includes, and section 15(3) says value of supply excludes. That's it. हो गया section 15 खत्म. Section 15(2) क्या बोलता है सर? Section 15(2) says supply includes, यहाँ पे लिख रहा हूं value of supply includes. What is section 15(3) says? Value of supply excludes. अभी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करना है, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ. व्हाट टू इंक्लूड इन सप्लाई एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन सप्लाई. इज इट ओके? व्हाट टू इंक्लूड इन सप्लाई एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन सप्लाई. नाउ सर, value of supply includes, point number 1, all taxes and duties. All taxes and duties excluding taxes and duties covered under जीएसटी एक्ट. ओके 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 सर, इसका मतलब आप लोकल टैक्स कवर करोगे, ऐड करो, लोकल टैक्स ऐड करोगे, मगर सीजीएसटी यू आर गोइंग टू इग्नोर, एसजीएसटी यू आर गोइंग टू इग्नोर, आईजीएसटी यू आर गोइंग टू इग्नोर, यूटीजीएसटी यू आर नॉट गोइंग टू कवर. इट मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? सेल टैक्स, एक्साइज, customs. Value of supply does not include CGST, SGST, IGST and UTGST. Okay sir, समझ में आ गया. So value of supply includes all taxes excluding taxes covered under GST Act. All taxes and duties excluding taxes and duties covered under CGST Act. Is it right बेटा? GST Act और CGST Act. मैंने क्लियरली बोला है इसमें सारे टैक्स और ड्यूटीज इंक्लूड होंगे. सिर्फ क्या नहीं इंक्लूड होगा? वो सारे टैक्सेस जो जीएसटी में कवर होते हैं. सर समझ में आ गया. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते? सर पॉइंट नंबर 2 सेज
थर्ड पार्टी या एनी पेमेंट incurred any payment incurred by the recipient. हो रेसिपिएंट कैसे इंकर करेगा सर? सप्लायर करेगा? नहीं नहीं, बट रेसिपिएंट ने इंकर किया तो भी एनी पेमेंट इंकर्ड बाय रेसिपिएंट फॉर विच supplier is liable, for which supplier is liable to pay. सप्लायर को देना था बट पे किसने किया? रेसिपिएंट ने पे किया, वो भी एक्सपेंसेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा? ऐड होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स any payment incurred by the recipient for which the supplier is liable to pay. अगर कोई भी खर्चा रेसिपिएंट करता है जो सप्लायर को देना था मगर रेसिपिएंट ने दिया, वो भी ऐड होगा। सर ये पेमेंट किया किसने? ये पेमेंट किया रेसिपिएंट ने। करना चाहिए था किसने? सप्लायर ने। पे किया किसने? रेसिपिएंट ने। तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो इंक्लूड होगा, इवन दो सच एक्सपेंसेस आर नॉट इंकर्ड बाय सप्लायर। बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करता कौन है? सप्लायर, because he is liable to pay tax or he is liable to calculate the amount of tax on value of supply. तो he will also see कोई एक्सपेंसेस जो रेसिपिएंट ने इंकर किया है जो मुझे इंकर करना चाहिए था वो भी उसमें ऐड करेंगे। इज इट ओके? यस। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल का मतलब होता है रिलेटेड। incidental expenses. Now what do you mean by incidental expenses? Incidental expenses means we can say incidental expenses charged by supplier. So supplier related price, related cost charge कर रहा है। Incidental expenses charged by supplier and for incidental expenses charged by supplier for any amount, for any amount, for anything done, for any amount, anything done at the time of supply और बिफोर डिलीवरी। बेटा देखो इसका एग्जांपल आप भी दे सकते हो, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो बेटा। कैन यू एनीवन गिव मी द एग्जांपल? सर डेफिनेटली, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी रिलेटेड कॉस्ट सप्लायर चार्ज कर रहा है कुछ भी एडिशनल वर्क करने के लिए, और वो भी एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द डिलीवरी। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एडिशनल कॉस्ट सप्लाई करते वक्त या डिलीवरी देने से पहले। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? यस, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? कोई एग्जांपल दे सकता है या मैं पूछूं? इरेन बेटा कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ दिस? नो सर आई डोंट नो। ठीक है कोई बात नहीं सर, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे कि पैकिंग, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, डिजाइनिंग है, एक्सेट्रा। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सब, डिजाइनिंग है एक्सेट्रा। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। बट सर वो तो आपने यहाँ पे कवर किया। हाँ बट मैंने बोला कि अगर कोई खर्चा जो सप्लायर चार्ज करता है कुछ भी करने के लिए बिफोर और एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी, तो वो भी इसमें ऐड करना है। ठीक है ये ध्यान देना है। कस्टम, सप्लाई, एक्साइज ड्यूटी, यस। रॉयल्टी, रॉयल्टी बोलो या वारंटी चार्जेस बोलो, रॉयल्टी और वारंटी चार्जेस। सो वारंटी चार्जेस मीन्स व्हाट? बेटा अगर आपने देखा होगा जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस पर ऑलरेडी वारंटी होती है 3 इयर्स की। आपको सामने से कंपनी ऑफर करता है इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस वारंटी फ्रॉम 3 इयर्स टू 5 इयर्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे 2000 एक्स्ट्रा। हैव यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाइल बाइंग द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट? कभी देखा है पेरेंट्स के साथ जब जब जाते हो
आपने देखा होगा सामने से एडिशनल वारंटी ऑफर करता है फॉर विच दे आर आस्किंग यू फॉर एक्स्ट्रा प्राइस। सामने से आपको और वारंटी मिलेगा सब्जेक्ट टू दैट यू आर सपोज टू बेयर और एडिशनल प्राइस। अगर वो और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करता लेता है तो वो भी इसमें ऐड होगा। इज इट राइट? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्जेस, अगर वो इंश्योरेंस निकाला किसने है? सेलर ने निकाला हुआ है। इज इट राइट? वेट चार्जेस, बेटा वेट चार्जेस भी होता है, वेटमैन उसको हम लोग बोलते हैं वेटमैन चार्जेस। ये सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो सप्लायर इंकर करता है किसके लिए? रेसिपिएंट के लिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द डिलीवरी। एट द टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने सेल्समैन कमीशन दे दिया, तो सेल्समैन कमीशन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी, तो उसमें ऐड होगा। रेंटल चार्जेस है, उसमें ऐड होगा। कौन दे रहा है? सप्लायर दे रहा है, सप्लायर दे रहा है, सप्लायर पे कर रहा है। इरेक्शन चार्जेस है, ऐड होगा। इरेक्शन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस ऐड होगा। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होगा। These all are expenses which are to be added because supplier has incurred such cost. Supplier has incurred such cost at the time or before delivery. Is it right? तो supplier कोई भी activity करेगा at the time of supply or before delivery, that particular cost will be added to the cost of supply. ठीक है सर? अगर सप्लायर कोई भी एडिशनल अमाउंट चार्ज करता है, एडिशनल अमाउंट सर यू वांट टू से इंटरेस्ट पेनल्टी? यस। लेट अस assume supplier has charged interest. If you remember late fee, late fees, penalty. If supplier is charging anything for delay consideration या for delay in payment, for delay in payments, in such case, for delay in payment, in such case, what will happen? Yes, beta, what will happen? That particular interest, late fee, penalty will be added to the cost of value of supply. ठीक है? And very very important, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्सिडीज। बेटा यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं सब्सिडीज में ही, सब्सिडीज में। सब्सिडी, now what about subsidies? Subsidies आपको तब ऐड करनी है when they are directly linked to price। सर नहीं समझा, मैं बताता हूँ एग्जांपल देख के, डोंट वरी। लिंक टू प्राइस होनी चाहिए, बट लिंक टू प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर मैं लैपटॉप सप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं लैपटॉप सप्लाई करता हूँ और मैं क्या करता हूँ ना सर, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में डील करता हूँ। सोशल वेलफेयर सर्विसेज होती है आजकल, मेनी पीपल आर डूइंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज। मैंने एक लैपटॉप इज अराउंड, टेक एन एग्जांपल, वन लैपटॉप having cost rupees 30,000। ठीक है? So those people who come from low income background, I offer them 30,000 का laptop to take an example 25,000, and 25,000 में laptop कहीं पे नहीं मिलता। Example minimum price in the market is going 30,000। Let us assume this offer I'm giving to every students who are right now studying, maybe in schools or 11th 12th or university students or even professional students। I told them, you come, show me your I-card, admission card, fee receipt, and take the laptop at 25,000। It means I'm giving them subsidy. I'm giving them what? Discount बोल सकते हो, as a social welfare activity। It is not discount, एक तरह से अपनी तरफ से छूट दे। अभी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट को पता चला कि सर बहुत अच्छा काम कर, बच्चे को लैपटॉप काफी सस्ते प्राइस में सेल कर रहा है। तो सामने वाले ट्रस्ट ने क्या बोला कि सर आप है ना बच्चों से 25,000 मत चार्ज करो, सिर्फ 20,000 चार्ज करो, पर लैपटॉप 5,000 हम आपको पे करें, पर लैपटॉप हम आपको पे करें।
Now tell me how much amount per laptop I'm getting. How much amount actually per laptop I'm getting? Is it 20,000 or is it 25,000? सारे बच्चों को पूछ रहा हूँ. Is it 20,000 or is it 25,000? 25,000 ही मिल रहा है. 25,000 ही मिल रहा है. It is not 20,000. Are you getting? 25,000 रुपीज मिल रहा है. मुझे बताओ क्या ये 25,000 में सब्सिडीज इंक्लूड है या नहीं है? सामने वाले ट्रस्ट ने दिया, जो कौन है? जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो व्हाट सेक्शन 15 सेज? सेक्शन 15 सेज कि सर अगर आपको कोई भी सब्सिडीज अगर आपके प्राइस से लिंक्ड है, बेटा उसने क्या बोला, आप सारे बच्चों को लैपटॉप 25 की जगह 20 में दो. मैंने 20 में दिया. मुझे बताओ क्या 5,000 का सब्सिडीज कोई और प्राइवेट कंपनी मुझे दे रहा है? आंसर इज यस. सो पहले भी मैं 25 में सेल करा था, अभी भी वो 25 में जा रहा है. सिर्फ डिफरेंस इज ये 25 में वो सब्सिडीज है जो मुझे प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से. सर जरूरी है प्राइवेट? गवर्नमेंट भी तो अच्छी है. यस सर, मान लो गवर्नमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है. तो व्हाट सेक्शन 15 सेज? सेक्शन 15 सेज अगर ये सब्सिडीज आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है, और अगर ये सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट से मिली है तो एक्सक्लूड करना है. इसका मतलब अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5,000 का सब्सिडीज मिला हुआ है तो आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी 25,000, और अगर आपको गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000. अरे बात समझा या नहीं समझा? वो ट्रस्ट मुझे 5,000 दे रहा था, बट इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट नाउ पेइंग 5,000, ट्रस्ट नहीं दे रहा है, 5,000 गवर्नमेंट दे रही. मुझे मिल 25 रहा है, मुझे मिल 25 रहा है, जिसमें से 5,000 गवर्नमेंट दे रही है, बट हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा प्रोविजंस में दिया हुआ है, ऐसा प्रोविजंस में दिया हुआ है. एनीबडी हैज एनी डाउट? लेट मी. तो अगर मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूं तो सब्सिडीज में माय एनालिसिस से, मुझे जहां तक मेरा एनालिसिस बोलता है कि गिवन बाय गवर्नमेंट, गिवन बाय गवर्नमेंट, नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड, उसको ऐड नहीं करना है. कहां पे ऐड नहीं करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना. हाँ, गिवन बाय अदर्स, गिवन बाय अदर्स मींस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी. पहली पॉसिबिलिटीज है, क्या सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस है? लिंक्ड विद प्राइस है. अगर लिंक्ड विद प्राइस है तो लो, तो ऐड करो, ऐड करो, एडेड एडेड एडेड. कहां पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई. नॉट लिंक्ड विद प्राइस है, नॉट लिंक्ड विद प्राइस. सर बट आपने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया. करता हूं. लिंक, नॉट लिंक टू द प्राइस, नॉट एडेड या इग्नोर, नॉट एडेड. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. आई एम गिविंग लैपटॉप टू ऑल स्टूडेंट्स कम्युनिटी. ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. 30,000 रुपीज का लैपटॉप मिनिमम अगर आप मार्केट में जाते हो तो यू विल बी गेटिंग 30,000. बट एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी, एज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, आई एम गिविंग laptop to all the students at 25,000. Just they have to come to me, they have to show their college I-card, school I-card, और प्रोफेशनल्स में है तो उनका एडमिशन लेटर्स जो भी है, रजिस्ट्रेशन, वो लेटर दिखाना है और लैपटॉप लेके जाना. ठीक है. अभी नाउ वन ट्रस्ट came to know that sir is doing very good activity for the student community. So now it is our responsibility to come forward and help him. So one trust approached me. He said कि sir आप बच्चों से 25,000 चार्ज करते हो. Don't charge 25. You charge only 20,000. 5,000 per laptop I will be giving. इसका मतलब this price is directly linked with 20,000. He said per 5 laptop 5,000 I will be giving. So here the price is linked with subsidies is linked with the price. क्या करना है? ऐड कर. बात समझा? पर अगर ये ट्रस्ट मुझे बोलता है कि सर आप बच्चों से ना 20,000 ही लेना, मेरे तरफ से मैं आपको
15 lakhs का डोनेशन देता हूँ या लमसम अमाउंट देता हूँ, 15 lakhs का सब्सिडीज, कितना 15 लाख का एक लमसम अमाउंट पे किया, लमसम, और वी कैन से डोनेशन। बेटा क्वेश्चन शुड बी वेरी केयरफुल, these 15 lakh is not directly linked with the price। तो ऐसी कोई सब्सिडीज या डोनेशन जो आपको लमसम में मिलती है, एग्रीड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस को कम करना ही होता है, बट दी सब्सिडीज और डोनेशन इज नॉट लिंक्ड विद द प्राइस ऑफ दैट कंपनी और लैपटॉप। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इफ एनीथिंग नॉट लिंक विद द प्राइस, उसे हम इग्नोर करेंगे या ऐड नहीं करेंगे। अगर वो ऑलरेडी ऐड है तो उसको माइनस करें। मेरी बात समझी या नहीं समझी? इफ नॉट लेट मी नो, तो मैं वापस और डिटेल में जाता हूं। इफ नॉट लेट मी, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उनको हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। चलो मैं भी यही करेगा। चलो पहले रिस्पॉन्स कर लो पहले। Don't respond in the private part, they don't message me directly please। डायरेक्टली मैसेज नहीं करना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है सर। लास्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड, डोंट वरी, मैं वापस सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) एक्सप्लेन करूंगा, और जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जाऊंगा यू विल फाइंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज वेरी वेरी वेरी, ठीक है। यस सर। चलो ना, सेक्शन 15(3) क्या होता है सर? सेक्शन 15(3) वहां पे पॉसिबल नहीं होगा ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सेक्शन 15(3), section 15(3), what is section 15(3)? value of supply excludes, value of supply exclude what? discounts। बेटा ये बात करता है डिस्काउंट। वो बोलता है कि सर जब कोई सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है तो डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे सर? डिस्काउंट होगा तो बट ऑब्वियस माइनस करेंगे, बट वो डिस्काउंट का भी नेचर है। सबसे पहले any discount, it talks about only discount, only discount, any discount given before or at the time of, at the time of supply। बेटा उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ये डिस्काउंट पहले दिया हुआ है या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हुआ। ये डिस्काउंट पहले दिया हुआ है और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, at the time of supply, then what, then what? दूसरा, any discount given after supply। ओके सर, मतलब सप्लाई करने के बाद कैसे डिस्काउंट होगा, समझ में नहीं आता। अगर सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करते वक्त कोई भी डिस्काउंट दिया होगा, डिडक्ट होगा, डिडक्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बोलना गलत रहेगा, सिर्फ वैल्यू लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द फाइनल आंसर। हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे वैल्यू में से। अगर कोई भी बेटा देखो ध्यान देना, जब सप्लायर रेसिपिएंट को गुड सेल कर रहा था या जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सप्लाई हो रहा था, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। और ये डिस्काउंट कब का था? ये डिस्काउंट था एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई, ठीक है। there may be a possibility in second case, there may be a possibility in second case, supplier put a condition, अगर आप मुझे पैसे 1 महीने के बाद देने वाले हो, if you are making payment me in 15 days, if you are going to make payment in 15 days, I will give you additional discount, that is called as any discount given after supply। Let us assume he has given discount, sorry, let us assume that he has made a payment as per the condition kept by the supplier। तो क्या वो डिस्काउंट को मिलेगा? मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीड एट द टाइम, एट द टाइम और बिफोर सप्लाई। सर सप्लाई करने से पहले और सप्लाई करते वक्त
सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला था, इफ यू मेक अ पेमेंट इंस्टेड ऑफ 1 मंथ विद इन 15 days आई विल गिव यू एडिशनल डिस्काउंट। अगर ऐसा कुछ है तो माइनस करने मिलेगा, डिडक्टेड या डिडक्शन अलाउड। डिडक्शन अलाउड तब होगा जब आप दो कंडीशन फुलफिल करोगे। ये भगवान, हर जगह कंडीशन। वो डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो लिंक्ड विद इनवॉइस होना चाहिए, लिंक्ड विद इनवॉइस होना चाहिए। सर नहीं समझा, इसमें आप क्या समझाना चाहते हो? टेक एन एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ सप्लायर एंड मिस्टर बी इज अ रेसिपिएंट। ए ने बी को सप्लाई किया, वैल्यू देख, एग्जाम्पल गुड्स 10,000 है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई 1,000 का डिस्काउंट दिया, 9,000। इज इट ओके? इज इट ओके? यस। B become insolvent and only 6,000 recovered from him. So 3,000 क्या है सर? 3,000 bad debts है, 3,000 bad debts है। Yes or no? Now tell me whether these 3,000 can you claim as discount? Can you claim as discount? Can you claim as discount? मुझे बताओ, क्या मिस्टर बी का ही इनवॉइस है? आंसर इज यस। क्या वो बैड डेब्ट्स को डिस्काउंट करके क्लेम कर सकता है? सर बैड डेब्ट्स को डिस्काउंट करके क्लेम कैसे कर सकता है? कैसे क्लेम कर सकता है? बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट, दीज आर द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मान लो मैंने और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, ऐसा सप्लायर दिखाएगा। he will not say it is a bad debt, it is a bad debt but will show। देखो, दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकते हैं। I hope you are getting, those who are already doing articleship they knows it very well। बराबर है, बट लीगली बेटा क्या बोलता है वो, कि जो भी आप डिस्काउंट बाद में दे रहे हो वो अलाउड होगा अगर वो पहले से एग्री होना चाहिए और वो उस इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए जिसका आप डिस्काउंट दे रहे हो। ओके सर, ये समझा पहली कंडीशन। बस सर इतना ही है क्या? नहीं नहीं, उसके बाद दूसरा कंडीशन भी है सर, आईटीसी रिवर्सल होना चाहिए। ए भगवान, ना व्हाट इज आईटीसी रिवर्सल? सर वी हैव नॉट स्टार्टेड विद आईटीसी, बट अगर जिस दिन हम आईटीसी स्टार्ट करेंगे तो आईटीसी रिवर्सल का मतलब क्या होता है आपको और क्लियर हो जाएगा। बेटा आईटीसी रिवर्सल का मतलब होता है सर, आईटी से मेरी जीएसटी की पेमेंट कम होती है। if I'm going to take such benefit, then whatever the benefit I have, whatever the benefit we have taken, it is to be paid। उसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी को रिवर्सल करना। रिवर्सल मतलब पहले मैंने बेनिफिट लिया और जितना आपने बेनिफिट लिया उसको आपको गवर्नमेंट को क्या करना है? पे करना है। दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी रिवर्सल। सर लास्ट पॉइंट वी हैव नॉट अंडरस्टूड, मुझे भी नहीं समझा, वेरी ऑनेस्ट, बट तो भी मैं आपको कोशिश जरूर करूंगा समझाने। तो ये डिडक्शन जो है डिस्काउंट का, वो आफ्टर सप्लाई है, पहले से एग्रीड था। हाँ एग्रीड था तो मिलेगा, बट दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो उसी इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, किसी और इनवॉइस से लिंक नहीं होना चाहिए। और डिडक्शन तब मिलेगा जब आपने उसका आईटीसी दिया होगा, वो रिवर्सल कर। सर आईटीसी लिया होगा रिवर्सल कर, कुछ नहीं समझा। दूसरी बात, अगर पहले से वो एग्रीड नहीं था और बाद में आपने उसको डिस्काउंट दिया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन नॉट अलाउड। Very simple. If anybody want to ask anything, let me. If anybody want to ask anything, let me. So, sir, section 15 we have covered. मैं वापस पूरा सेक्शन को अच्छे से रिपीट करता हूँ, फिर बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को we will continue in the next lectures. Is it okay? Because practical problems will be easy only if you have understood this provision, otherwise not. So first provision is section 15.1. Section 15.1 says that value of supply means transaction value. और transaction value means when it will be only value of supply मेरा transaction value कब होगा? When it satisfy three condition. Value of supply transaction value means price actually paid or payable for supply, and supply and recipient should not be a related person, and price should be the sole consideration. This is my first condition. ठीक है? If this is satisfied, then only we will move to 15.2.
if in case if price is not a value of price is not a transaction value, in that case what? अगर सर मान लो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? सब निकालेंगे रूल्स है, rules of valuations. That also we are having in syllabus, and then we will be discussing after completing the practical problem of section 15. Section 15 says आपको ये include करना है. What we are going to include? We are going to include all taxes. सिर्फ उसमें GST से related कोई tax include नहीं होगा. We are going to include all the payment incurred by recipient which supplier is liable to pay. सर supplier को देना था, but वो payment किसने दिया? सर वो payment दिया recipient को. वो payment किसने दिया? Recipient ने. Is it okay? दूसरा, सो कोई भी एक्सपेंसेस अगर सप्लायर इंकर्ड कर रहा है एट द फॉर एनी अमाउंट डन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर डिलीवरी ऐड कर, जैसे कि पैकिंग है, लेबलिंग है, डिजाइनिंग है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, इंश्योरेंस, वेज चार्जेस, सेल्समैन कमीशन, रेंटल चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, प्री डिलीवर इंस्पेक्शन चार्जेस, एक्सेट्रा 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 ऐड करेंगे. If a supplier charge interest, late fee, penalty for delay in payment, GST will be charged. Sorry, it should be added to the value of supply. It should be added to value of supply. क्या करना पड़ेगा? So value of supply में उसे add करना पड़ेगा. Value of supply में add करना पड़ेगा. If anybody has any doubt, let. If anybody has any doubt, let. Is it okay? Now, any subsidies directly linked by to the price by a person other than government. क्या सर वो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी? यस. वैल्यू सप्लाई में नहीं. क्या वो सब्सिडी अदर से मिली? हाँ. तो हम लोग ऐड तब करेंगे जब वो प्राइस से लिंक्ड होगा. जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैं बच्चों को लैपटॉप दे रहा हूँ. One trust approach me per laptop they are going to pay me 5,000. You charge 5,000 less from the students. That's it. मतलब that 5,000 is linked directly with the price. For every laptop they are going to pay me 5,000 extra. So it is linked with the price. क्या करना है? Add करना. क्या करना है? Add करना. But if it is not linked directly to price तो मैं add नहीं करूंगा. उन्होंने बोला ये लो 15 लाख रुपीस और हमारे तरफ से जितना सब्सिडीज बच्चों को हो सकता है वो दे दो. So here the subsidies have received in lump sum in form of donation, like donation. So it is not linked with price, so we are not going to add. Last one is value supply exclude discount. So discount is of two types. Is it given before at the time of supply? If it is yes, supply में से minus करो. If it is given after supply, पहले देखो क्या वो एग्री था तो मिलेगा, बट दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो वो उस इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, और वो डिस्काउंट जिस अमाउंट पे आप क्लेम कर रहे हो, जिस पे आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो, उसको रिवर्सल करना है. बेटा ये टॉपिक में ना आप लोगों को जब हम आईटीसी करेंगे, आईटीसी पढ़ेंगे, आईटीसी पढ़ने के बाद ये पॉइंट में वापस आऊंगा. जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का मतलब गुड्स का सप्लाई सर्विसेज का आईटीसी देते हैं, सो वी आर पेइंग लेस टैक्स. पर जब मैं उस पर जीएसटी का ना डिस्काउंट ले रहा हूं, तो बेटा डिस्काउंट लेने से क्या होगा? मुझे जो बेनिफिट लिया हुआ आईटीसी का मुझे उसको पे करना है. एंड अगर वो डिस्काउंट पहले से एग्रीड नहीं है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. चलो ठीक है सर, मैं जस्ट गो थ्रू करता हूँ एक बार प्रोविजन. सर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पूरा टेबल बनाया. अगर मैं पूरे प्रोविजन को पढ़ूंगा यू विल फाइंड द सेम. सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्ज इंक्लूड करना है. लेविड अंडर एनी लॉ,
एनी सर इसमें जीएसटी भी आता है, 2 मिनट रुको आगे बढ़ने दो। फॉर द टाइम बीइंग फोर्स अदर देन दिस एक्ट का मतलब क्या है? जीएसटी एक्ट। सर हम पढ़ क्या रहे हैं? जीएसटी पढ़ रहे। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। स्टेट्स एंड गुड्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी, उसके बाद है यूनियन टेरिटरी के बाद है आईजीएसटी, कंपेंसेशन टू स्टेट। सब एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे। सर जो सप्लायर को देना था बट रेसिपिएंट ने इंकर किया एंड नॉट, हाँ, और वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए प्राइस में, इंक्लूड नहीं है, नहीं है ऐड करो। अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो प्रॉब्लम नहीं। बेटा देखो, सप्लायर इनवॉइस में सिर्फ वही कॉस्ट ऐड करेगा जो वो खुद इंकर करता है। रेसिपिएंट ने किया हुआ खर्चा इनवॉइस में इंक्लूड होगा क्या? आंसर इज नो, नहीं है ना। तो वो भी खर्चा ऐड करो जो रेसिपिएंट ने किया हुआ, वो भी खर्चा ऐड करो जो रेसिपिएंट ने किया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग। इफ रेसिपिएंट इज डूइंग, if recipient is doing if recipient is doing, so it should be added. If it is not added in the invoice, incidental expenses, which expenses? Incidental expenses. Now what is incidental expenses? अगर कोई भी expenses supplier incur करता है at the time or before delivery, it can be commission, package charged by supplier to the recipient of supply, or any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or services, or both, at the time or before the delivery of goods or services. Interest, penalty, fine for delay in payment of delay in payment of consideration for any supply add होगा. Any subsidies directly linked to the price, excluding subsidies provided by the central government and state government. सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडीज उसमें ऐड, ठीक है सर, ये भी समझा। सर क्या ऐड नहीं होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट, शैल नॉट इंक्लूड। अगर कोई डिस्काउंट आपने पहले या सप्लाई के वक्त दिया हुआ है तो इंक्लूड नहीं करना है, माइनस करना है। आफ्टर सप्लाई किया हुआ है, ओके, तो एग्री था क्या? सच डिस्काउंट इज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, क्या पहले से एग्री था क्या? वो एग्रीमेंट बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लिंक टू द रिलीवेंट इनवॉइस। वो अगर वो इनवॉइस जो आप डिस्काउंट क्लेम कर रहे हो वो किसी और का इनवॉइस का है तो यहाँ पे आप माइनस नहीं कर सकते। और तीसरा है, नेक्स्ट है आईटीसी, एट्रीब्यूट टू द डिस्काउंट। सर जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, अगर उस डिस्काउंट के अमाउंट का आपने आईटीसी लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर, ही इज टॉकिंग अबाउट क्रेडिट नोट, इज टॉकिंग अबाउट क्रेडिट नोट। सर नहीं समझा, क्रेडिट नोट की हम लोग डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। सर उसने इनवॉइस इशू किया था 10,000 का, बाद में पता चला 10,000 का इनवॉइस इशू किया था, अभी वो डिस्काउंट बाद में जाके 500 का देगा, तो बेटा उसका एक्चुअल सप्लाई कितना हुआ? 9,500, इज नॉट 10,000। तो अभी 10,000 से 9,500 करने के लिए बेटा ये जीएसटी इनवॉइस है, ध्यान देना है, ये फाड़ के नया इशू नहीं करेगा। ये जो 500 का डिस्काउंट है वो 10,000 से कम करने के लिए वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। We are having one more chapter called as documentation. It's a very wonderful chapter, very wonderful chapter. मजा आ जाएगा आप लोग। तो ये डिस्काउंट का जो बेनिफिट लिया है इन फॉर्म ऑफ आईटीसी, वो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए 10,000 क्या है? इनवर्ड सप्लाई है। सर इसने इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी लिया होगा या नहीं लिया होगा? होगा। तो आपने 10,000 का बेनिफिट दिया है, तो बट आपको, आपने तो 10,000 में से 500 कम भी दिए हैं, तो ये 10,000 में से 500 जो बेनिफिट आईटीसी का लिया है, इस आईटीसी, इस 500 के ऊपर जो आईटीसी का बेनिफिट लिया हुआ है उससे आपको रिवर्सल करना है। क्या करना है? रिवर्सल। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? लेट
Anybody want to ask anything? Let me. now now उसने बोला है पॉइंट नंबर 15.4 में, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मान लो सर आपके लिए पॉसिबल नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना 15.4 में, तो आपको डिटरमाइन करना है इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और मैंने पहले ही बताया था, जब भी नोट्स में वैल्यू आता है सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जब भी लिखा रहेगा डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, they are talking about rules of valuation, rules of valuation 15.4। तो 15.4 बोलता है if you are not able to determine the value of supply, the value of supply can be determined in the manner as may be prescribed। it means they are asking us to refer rules for valuation। ठीक है। not notwithstanding anything contained in subsection 1 to 4। सर जो हमने सेक्शन 15.1 से लेके 15.4 में देखा उसको छोड़ के the value of such supplies may be notified by the government on recommendation of council shall be determined such manner as may be prescribed। सर देर में भी a possibility कि सेक्शन 15.1 में बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15.2 में बोला है इसको लेना है, 15.3 में बोला इसे नहीं लेना है, 15.4 में बोला अगर नहीं पॉसिबल तो रूल्स ऑफ वैल्यूएशन रिफर करो। 15.5 बोलता है अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे तो गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन इशू करेगा और उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी ऐड करेगा। क्या करेगा? कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड करेगा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेगा जिससे हम बोलेंगे वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। ऐसा पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने प्रोविजन डाल के रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम 1 to 4 अगर गवर्नमेंट को लगा वो नोटिफिकेशन इशू करेगा अगर काउंसिल उनको रिकमेंड करता है तो। और सर हमने रिलेटेड पार्टी, इफ यू रिमेंबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पर्सन आर द ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अदर बिजनेस, याद है नहीं याद है? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसका भी बिजनेस है, इसका भी बिजनेस है। ये मिस्टर ए इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन का पार्टनर है, ये पर्टिकुलर पर्सन इसके बिजनेस का पार्टनर या ऑफिसर या डायरेक्टर। दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं वापस को एक्सप्लेन करूंगा नहीं। चलो सर मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करके बताओ, व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो बताओ मुझे मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, बस ये आंसर बता दो, फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। दिस इज अ क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, टेल मी व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। जल्दी बेटा फास्ट, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? टेक कैलकुलेटर, फटाफट 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 बता दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो? मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या यू विल बी सॉल्विंग ऑन योर ओन? You want me to solve one question or you will be solving? Waiting for the responses. बोलो बेटा क्या आएगा? What will be the value of supply? चलिए वन क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं। मुझे बताओ, सुनील एंड कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स टू एबीसी स्कूल। सर सुनील एंड कंपनी एबीसी को कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, बराबर है? यस। वैल्यू ऑफ टीवी, सर सुनील एंड कंपनी ने 1 लाख रुपए का टीवी सेल किया, ठीक है। लोकल टैक्स पे किया, इंक्लूड होगा? होगा। सेक्शन 15(2)A में दिया हुआ है प्रोविजन कि अगर आप कोई भी टैक्स पे करते हो वो इंक्लूड होगा, बस वो टैक्स कवर्ड अंडर जीएसटी नहीं होना चाहिए। 1,10,000 हो गया। स्पेशल पैकिंग होगा, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय सप्लायर फॉर डूइंग एनीथिंग, फॉर डूइंग एनीथिंग एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई इंक्लूड होगा। इंश्योरेंस इंक्लूड होगा।
सब्सिडीज कौन दे रहा है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, इंक्लूड होगा। तो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई? सर 10, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 15, 1 लाख 17, 1 लाख 20, 1 लाख 30। माय वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1 लाख 30। देखो नीचे आ रहा हूँ, 1 लाख 30। यस, 1 लाख 30। बात समझा या नहीं समझा? आपको सिंपली देखो कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड दिस क्वेश्चन डोंट वरी विल नॉट कम फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन अलग आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। समझा या नहीं समझा? चलो आगे बढ़ेंगे ना। अभी मुझे बताओ इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जस्ट जस्ट हाँ, नहीं इसका नहीं, दूसरा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन। यस, टेल मी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, टेल मी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वेट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। इट इज वेरी सिंपल। This question may come for like 3 marks, 4 marks, not 4 marks also, 3 marks is sufficient. So value of supply 68,600, बापरे 75,400। ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। Waiting for others to reply fast. $66,600, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान दो। संतोष ने गुड्स एक्वायर्ड किया वर्थ ₹70,800 सर, जिसमें CGST 9%, HGST 9%। इसका मतलब सर मेरा वैल्यू ऑफ गुड्स कितना आएगा? सर मेरा वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा 70,800 इंटू, सर मुझे 100% का वैल्यू लेना है और ये वैल्यू 118 का है। 118 का मीन्स इसमें GST इंक्लूड है। यस, चलो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बेटा फास्ट। 70,000 बेटा देखो उसमें से GST मैंने माइनस कर दिया, निकल जाएगा बाय डिफॉल्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू? सो वैल्यू विल बी 60,000। ठीक है, यू डू लाइक दिस, या आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स। इसमें आएगा वैल्यू ऑफ गुड्स इतना 70,800 माइनस GST 10,800, और आउटर कॉलम में डालना है यहाँ पे 60,000। ठीक है। सर सेलर इंकर 2,000 टूवर्ड टेस्टिंग एक्सपेंसेस। सर सेलर मतलब कौन? सप्लायर आएगा। जो भी एक्सपेंसेस सप्लायर इंकर करेगा बिफोर सप्लाई, वो सारी एक्सपेंसेस आएंगे 2,000, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, तो इंक्लूड कर दो। म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन गुड्स आएगा, म्युनिसिपल टैक्स आएगा। कितना है म्युनिसिपल टैक्स? सर म्युनिसिपल टैक्स है 16 है, लोकल टैक्स आ गया। सर डिस्काउंट 2,000 बाद में माइनस करेंगे। संतोष पेड कार्गो एक्सपेंसेस, कार्गो एक्सपेंसेस 3,000। चलो प्लस करो, कितना आया सबको? 62, 62, 65, 66, 600। उसमें से 66, 600, उसमें से डिस्काउंट माइनस करें। सर डिस्काउंट कितना है? 2,000। सो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई? 64,600। कितने बच्चों ने दिया 64,600? आई डाउट किसने दिया। 64,600, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। मिस्टेक कहाँ पे हुआ? सर हमने डिस्काउंट माइनस नहीं किया। इज इट राइट? चलो देखते नीचे क्या आंसर है।
61,600, ओहो हो, कुछ गड़बड़ हुआ क्या कैलकुलेशन में सर? यहाँ पे 61,600 आ रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओके। मैंने अमाउंट गलत लिखा है। एक्सप्लेन सर, एक्सप्लेन अगेन, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, करता हूँ। मैंने टोटलिंग बरोबर ली है या नहीं? सर टोटलिंग तो बरोबर ली है। then why there is a mistake? Can you please elaborate, मेरा mistake कहाँ पे है? Because I'm taking lecture since morning, so I'm fully exhausted now इसके लिए। So what is the mistakes? कार्गो चार्जेस नहीं लिया हुआ, जस्ट वेट। Just wait. Mr. Santosh paid cargo expenses ₹3,000 to bring to his factory. Okay, समझा समझा। Who is Mr. Santosh? The Santosh is a recipient. तो हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया ठीक से। सर रेसिपिएंट कोई भी खर्चा करेगा जो किसने करना चाहिए? सप्लायर ने करना चाहिए, तो ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। अभी सर फैक्ट्री से उसके फैक्ट्री तक कोई भी, अभी देखो संतोष कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा है, क्या ये कॉस्ट, क्या ये कॉस्ट सप्लायर का है? आंसर इज नो। अगर सप्लायर का होता तो ऐड होता, मैंने यहाँ पे ऐड सप्लायर का एज्यूम करके किया, यहाँ पे सप्लायर का एज्यूम करके किया हुआ है। इज इट ओके बेटा? जस्ट नीचे नोट है क्या, देखते हैं। अगर सप्लायर का कॉस्ट होता तो ऐड होता, देखो उसने क्या लिखा हुआ है। एनी एक्सपेंसेस incurred by buyer related to the goods are not included in the value of supply because it is not incidental to supplier। तो सप्लायर का कॉस्ट नहीं था, वो सेलर का, बायर का ही कॉस्ट है, इसलिए नहीं इंक्लूड किया। अगर वो सप्लायर का खर्चा था बट बायर ने पे किया हुआ है तो आएगा। Taxes under GST would be excluded while calculating what? The value of taxable supply. Value of taxable supply. If anybody has any doubt, if anybody has any doubt, no doubt, आगे बढ़े। Yes, is it done? तो सर हम लोग कल क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट ओके? सो बाय फॉर द डे। Anybody want to ask any doubt? If anybody want to ask any doubt, let me know. So waiting for you all. Anybody want to ask any doubt? No doubt. ठीक है then. Fine for the day. Thank you.